Afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon, guys. Okay, so let's start today's lecture. I have kept some small questions for you to answer, which are based on the things that we have already covered in previous lectures. Okay, let's see if you are able to answer those questions correctly. Okay, let's start. Okay. Azad Hind Radio Services, when it was established, the year I want, where, in which place, and by whom. These are the three questions. I discussed this topic when we were talking about Parakram Divas. Okay, very good, guys. Very good. Which place? Which place? 1942 is the correct answer. Germany, but Germany में कौन सा city? 1942. This was in Berlin. Very good, guys. And Subhash Chandra Bose. Okay. नेताजी. अबे भाई हिटलर कहाँ से आ गया? हिटलर अपने काम में बिजी था वो टाइम पे, ठीक है? बिजी कॉन्करिंग यूरोप, आई वुड से. हिटलर, ओके. सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ओके, इट वाज नॉट हिटलर. ठीक है, ऑप्शन में देंगे टिक मत करना वरना मार्क चला जाएगा. ठीक है, ओके गाइस, वेरी गुड. ठीक है, लेट्स गो अहेड देन. Bharat Ratna was announced for Netaji Subhash Chandra Bose in which year? In which year Indian government accorded Bharat Ratna to Subhash Chandra Bose? Anmol and Siddhant, correct answers. Very good. Okay, other people, come on. Which year? Raj, very good. अरे गूगल करके आंसर मत बताना यार अपने आप में, ठीक है? वरना मैं बताने ही वाला. Yes, guys, come on. Okay, it is in the year 1992. 1992. Very good, guys. Very good. Okay. Let's go ahead. Asia's largest solar power project. नाम क्या है उसका, कहां पे आया है और उसकी कैपेसिटी कितनी है? Very good, Siddhant. Very good. You got it right. Ayan, very good. These are simple questions, very straightforward. कुछ गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. Yes, रेवा. रेवा पावर प्लांट कहां पे? इन मध्य प्रदेश, इन एमपी. ठीक है, और कैपेसिटी कितनी थी? What was the capacity? Very good, others. Very good. Rishit, I want how much megawatt it can generate. Very good, guys. 750 megawatt. मेगा मतलब 10 raised to how many? 10 raised to what? मेगा में 10 raised to कितना होता है? Come on, guys. 10 raised to 6. That is called mega. Kilo means 10 raised to 3. Mega means 10 raised to 6. सही बोल रहा हूं ना मैं? Am I right? ठीक है, चलो. How many people
were awarded Padma Vibhushan this year? कितने लोगों को इस साल पद्मा विभूषण मिला है? ऋषित, योर आंसर इज रॉन्ग. सोम्या गलत आंसर है. अयान वेरी गुड. वैभव राइट. खुशी, योर आंसर इज रॉन्ग. वंश रॉन्ग. देखो यार, इतनी सिंपल गलतियां मत करना. देयर वर 4 पीपल. ठीक है, 4 पीपल. और नाम बताओ उनका. व्हाट वाज द नेम? प्रभा आत्रे, बिपिन रावत. वेरी गुड. और 2 जन कौन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका. वेरी गुड, very good. But this was not the true question that I wanted to ask. This is the main question. कि उनको कौन सी फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्म विभूषण मिला है? In which field? That is important. प्रभा आत्रे, she got it in the field of art. ठीक है, art. राधेश्याम खेमका for literature and education. कल्याण सिंह कौन थे? ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे. जब बाबरी मस्जिद टूटा था तब ये महान भाई साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे. ठीक है. सो बेसिकली ही गॉट इट फॉर पब्लिक अफेयर्स. And Bipin Rawat, he got it for civil services. मिलिट्री जैसा कुछ नहीं होता. सिविल सर्विसेज इज द वर्ड. प्लीज राइट डाउन दिस थिंग्स. दिस आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. सो यू शुड नो द एग्जैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, लिख लो. ओके गाइस, लिख लिया. चले आगे. ओके, लेट्स गो देन. ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा was an exponent of which घराना? ये ब्रिज मोहन नाथ कौन है भाई? पहले वो तो बता दो. आधे स्टूडेंट्स उसमें ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा कौन है. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बिरजू महाराज की बात कर रहा हूं. ठीक है, बिरजू महाराज. ठीक है, वेरी गुड. ही यूज्ड टू परफॉर्म कथक. एंड विच घराना? द आंसर इज कालका बिन दे दिन लखनऊ घराना. ओके, am I clear guys? How many classical dances are there in India? ये सब पढ़ा चुका हूं मैं. कितने हैं इंडिया में? कितने क्लासिकल डांस हैं? द आंसर इज 8. Which authority decides that which dance is a classical dance? The answer is Sangeet Natak Academy. Okay. And I am writing down the name for the purpose of revision. ठीक है. कथक, मणिपुरी, सात्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भारतनाट्यम,
Kathakali, and Mohiniyattam. These are the 8 classical dance in India. And I am telling you to write down the region in which these dances are performed. Kathak is performed in North India, throughout North India, because we have Jaipur Gharana also, which is very famous. Okay, Manipuri is performed in the state of Manipur. Satriya is performed in Assam. कुच्चुपड़ी इज परफॉर्म इन कहां पे होता है ये करवा चुका हूं मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आज कुच्चुपुड़ी कहां पे होता है आंध्र प्रदेश ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा भारतनाट्यम इज इन तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनीअट्टम इज इन केरला लिख लो फटाफट there are some new students this information is important for all of you so pen and paper लो और लिखो okay guys should I go ahead okay guys चलो देखो लेट मी टेल यू मैं बहुत ही धीरे धीरे बोलता हूं ताकि आप सबको आराम से सुनाई दे ठीक है सो पे अटेंशन इफ आई कीप रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन तो हम कम पढ़ पाएंगे ठीक है सो बी अवेयर ऑफ दैट लेट्स गो एंड नाउ नहीं मोहिनीअट्टम इज नॉट अ मार्शल आर्ट आप जिसकी बात कर रहे हो केरला का मार्शल आर्ट इज कलरियापट्टू that is different okay these are dances these are not martial arts okay let's go which is the first union territory to integrate with national single window system मैं एक ब्रीफ दे देता हूं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या बेसिकली if any private player wants to do business then he has to take number of permissions so all of these permissions can be given at a single place and that place is called as national single window system वेरी गुड गाइस आप सबने सही आंसर दिया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है वेरी गुड लेट्स गो अहेड शाइनिंग ऑफ काराकोम ये एक जगह है विच वॉज इन न्यूज इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था आपको मुझे बताना है कि ये कहां पे लोकेटेड है शाइनिंग ऑफ काराकोम इज द प्लेस which was in news so you have to tell me that where this place is located only 4 answers बस इतना ही यार this is Darwaza grass crater which is located in Turkmenistan याद आ रहा है बाकी सबको ऑल्सो कॉल एस डोर टू हेल यस अनमोल ठीक है और तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान वेरी गुड गाइस कैपिटल इज आशबागत okay let's go ahead
नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? When is National Voters Day celebrated? Very good. क्यों 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? What is the reason? Why 25th January? What is the reason behind selecting 25th January? Because on 25th January 1950, Election Commission of India was established. Okay. The organization which is responsible for conducting elections throughout India. It was established on 25th January 1950. Who was the first Chief Election Commissioner of India? IQ की बुक में दिया है, in the static book. Who was the first election commissioner of India? Sukumar Sen. Very good. इंडिया का सबसे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? लोकसभा का इलेक्शन इन विच ईयर? नाइनटीन 52. ओके, फिर और क्या बाकी था? कौन इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है या फिर हमने एक लॉ पास करके इसको बनाया गया है? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में? (324). Very important. Article 324. Okay. Article 324 talks about Election Commission of India. It is a 3-member body. But initially it was only a single member body. याद रखना ये बात. Constitution में पहले it was a 1-member body. Then through amendments it was created a 3-member body. Initially, the voting age was 21 years. Now you tell me that by which amendment to the Constitution 18 years was made the age for voting? Very good, guys. 61. Constitutional Amendment Act. Okay. Very important facts right now I am talking with regarding to Election Commission of India. ठीक है? Please write down the theme. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है ये डे सेलिब्रेट करने का? अवेयरनेस करना, एनकरेज करना, फैसिलिटेट एनरोलमेंट इन वोटर्स लिस्ट. ठीक है? Am I clear, guys? ओके, राइट डाउन. कम ऑन, फटाफट लिखो, आगे चलेंगे फिर. हो गया एवरीबॉडी? शुड आई गो अहेड? अरे भाई, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रख लो इतना. डोंट स्पेंड टाइम ऑन एवरी ट्रिवियल थिंग्स. देखो गाइस, आई वाज एनालाइजिंग सम मैगजीन्स with respect to current affairs only. So I come across a number of questions
जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे. नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग 5 में से 3 सॉल्व हो सकते हैं, 4 सॉल्व हो सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है उससे. बट एक दो क्वेश्चंस तो आपको ऐसे दिखेंगे जो कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, मतलब एक रिलेटेड टॉपिक के लिए आपको कितना सब पूछ सकते हैं. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात. लाइक लास्ट ईयर आपके सीनियर्स को मैंने बताया था दैट वी हैव टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन लास्ट ईयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 50 साल पूरे हो रहे थे, राइट. अभी यार मैं जवाहरलाल नेहरू का हैप्पी बर्थडे याद रखूं या शेख मुजीबुर रहमान का याद रखूं. समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब. सो कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आएगा. बट अगर आपको नहीं आएगा तो वो किसी और को भी नहीं आएगा. समझ रहे हो. दैट्स द होल थिंग. चलो लेट्स गो अहेड नाउ. मतलब यार यहाँ पे मैं स्कूल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में से पढ़ा हूँ कि गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है तो मुझे याद रहता है ना, और छुट्टी भी देते हैं, वरना मैं थोड़ी याद रखूंगा उनका बर्थडे. ठीक है, ठीक है. चलो आगे चलते. लाइक वी डोंट नो जवाहरलाल नेहरू बर्थडे. ठीक है, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती हमको उस दिन, तो क्यों याद रखे. तो यार ऐसा होता है ये सब. ठीक है. हाँ 14 नवंबर, यस, वो चिल्ड्रन डे वाला. यस चिल्ड्रन डे. यस यस, थैंक यू गाइस, थैंक. लेकिन उससे कुछ नहीं होता, मेरे को छुट्टी चाहिए तो ही मैं याद रखूंगा. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड नाउ. और अभी ध्यान से सुनो. टुडे टॉपिक्स आर वेरी मच इन डिटेल. ध्यान से पढ़ना. ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूं वो पहले सुनना और बाद में लिखना. ठीक है, क्योंकि मैं इस पीपीटी में जो इंफॉर्मेशन है उसके अलावा भी काफी कुछ बोलता हूं. सो पे अटेंशन उस पे भी. ठीक है, चलो. Recently, which ritual was selected from India to be included in the UNESCO list of intangible cultural heritage? ये मैं पढ़ा चुका हूं इन डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है मैंने. अरे वेस्ट बंगाल महापूजा ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका, दुर्गा पूजा नाम है. ठीक है, आप दुर्गा देवी को कैसे भूल गए यार. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज दुर्गा पूजा. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दुर्गा पूजा, टोटल इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है. अनमोल 38 तो बहुत गलत आंसर है. आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हो, जो अब 38 नहीं है, टोटल 40 है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ धोलावीरा एंड रुद्रेश्वरा टेम्पल. बट आप लोग जो 40 लिख रहे हो वो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर रहे हो. दिस क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट. ये जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने तब भी बोला था कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वो चीज है जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो. सॉरी, टच नहीं कर सकते लेकिन आप इन चीजों को. इसलिए नाम क्या है, इंटेंजिबल. अरे आप लोगों ने वो देसी बॉयज नहीं देखा है यार, चित्रांगदा वाला, वो इंटेंजिबल गुड्स के बारे में पढ़ाती होती है अक्षय कुमार को. आपको ये सब ऐसे याद रखवाना पड़ेगा मुझे. There are total 14 sites after the inclusion of दुर्गा पूजा. ठीक है, देखो जब मैंने पढ़ाई थी ये चीज मैंने तब भी बोला था that it is your duty to remember the other 13 आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया. जो बाकी के 13 आर्ट फॉर्म है वो आपको आने चाहिए. आपको एग्जाम में पूछेंगे 4 डाल के ऑप्शन. ठीक है, कुंभ मेला है, योगा है, चांटिंग ऑफ संस्कृत स्लोगन्स है. ठीक है, देयर आर टोटल 14. कौन डिसाइड करता है किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे? कन्वेंशन ऑन सेफगार्डिंग ऑफ यूनेस्को. ठीक है, ये कमिटी है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को इन 2003 which selects and give this status. Remember this thing that even individuals are also classified as
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन करती है टू सेंड रिकमेंडेशन टू यूनेस्को? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड दे इवन रन अ स्कीम to safeguard the intangible cultural heritage of India. And overall, which is the nodal agency? Nodal agency मतलब main agency कौन सी है इसके लिए भी? संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? कुछ डाउट इसमें? अगर आपको ये 14 नेम्स याद नहीं रहेंगे तो यू विल बी इन डिसएडवांटेज पोजीशन, मैं अभी से कह रहा हूं। ठीक है, so it is my request that you do know all the 14 sites. पता चल रहा है बाकी को, especially the new students? आंसर नहीं आ रहा है ना? पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है ये सारी चीज, आपको पता चल रहा है? The new students, I don't know much of you guys. Okay. अब पता चल गया, बस वेरी गुड, यही that is the motive guys. Are you appearing for mock test? आप सब mock test ले रहे हो? The guys who are going to appear this year, and I hope this portion of GK is going well for you. Okay, आप लोग attempt कर सकते हो उसे अच्छे से. Okay. अरे वंश, मैं आपको अभी आके दिखाऊंगा, मैं सब कुछ कॉपी पेस्ट मैं न्यूज़पेपर से करता हूँ। अभी जितने भी बड़े बड़े आर्टिकल्स आएंगे 3-3 पीपीटी के, वो सारा मैं न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, anything above 25 is good and 30 is best. Okay guys, let's go ahead. Okay, चलते हैं आगे। इंडियन एक्सप्रेस, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज काफी सिंपल आती है, मतलब कोई भी पढ़ के आराम से समझ सकता है किसी भी न्यूज को। दैट इज द गुड थिंग अबाउट इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया मजा नहीं आता, वो तो मतलब एकदम बेकार न्यूज पे, मेरे को मजा नहीं आती पढ़ने। ठीक है, ओके गाइस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। why we are studying this? Because आपको पिछले साल ही इसके बारे में पूछा था। I am not kidding, last year only the questions were asked from this topic, और ये मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ न्यूज़पेपर से। ठीक है, so we should know some important facts about World Wetland Day and how many wetland sites are there in India. So step by step समझते हैं कि wetland होता क्या है। As the name itself suggests, any type of water body can be included as a wetland. ठीक है, जहां पे पानी हो, वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसी बॉडीज को क्लासिफाई किया जाता है एज वेटलैंड। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? द आंसर इज 2nd February. Then why we celebrate it on 2nd February only? What is the reason behind it? Because a meeting was held in 1971 in the city of Ramsar in Iran, और वहां पे हमने वेटलैंड को कंजर्व करने का रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया था। सो फॉर दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज, वी सेलिब्रेट World Wetland Day on 2nd February. Okay. Ramsar Convention is also an intergovernmental treaty. Okay.
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। और सबसे बड़ी रामसर साइट कहां पे है? बोलीविया में। बोलीविया, ओके, बोलीविया। इसरो ने इस साल क्या लॉन्च किया है? नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलास। इसरो ने विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स अ मैप हैज बीन रिलीज्ड बाय देम व्हिच शोज द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। पता चला। और उस मैप का नाम क्या रखा है? नेशनल वेटलैंड चेंज एटलास। What is the theme of this year? Wetland action for people and nature. Guys, are you getting it? And which two sites are selected this year from India? The answer is Khijadia Wildlife Sanctuary. It is located in Saurashtra, Gujarat. And other is Makhira Wildlife Sanctuary in UP. अगर आपको बोरिंग लगता है कि ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो पिछले साल का नहीं, लेकिन उसके पिछले साल का पेपर आप देखिए, 2 साल पहले का पेपर देखिए। 5 questions from backlands from India. Now you have to do some important work. मैं homework दे रहा हूं, प्लीज लिखो। You will tell me that how many total backlands are there in India now. Question number 1. Question number 2. Which was the first wetland, Ramsar wetland site in India? That is question number 2. और एक मॉन्ट्रू कन्वेंशन होता है, मॉन्ट्रू कन्वेंशन, which is associated with Ramsar wetland sites. What this list is about? आपको ये बताना है। मैं भी मेरी बुक में लिख रहा हूं, वो भी आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग ओनली नेक्स्ट लेक्चर। दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस, ठीक है? चलो लिख लो। Am I clear? What is wetland? Why do we celebrate it? What is the importance? Okay, please write down. सुंदरबन भी इंक्लूडेड है। थॉल जाते हो ना आप सब? थॉल लेक गए हो? वो भी एक वेटलैंड है, ठीक है? यस, रामसर साइट्स मींस वेटलैंड्स गाइस। यस, रामसर साइट मतलब वेटलैंड। भाई नए बच्चों को पता चल रहा है? नए बच्चों को पता चल रहा है? Those are new students, please say yes. Okay. Okay, guys. Good. Come on, write it down, then we will go ahead. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर्स, all of these are very much important. ख्याति मैंने यहाँ पे लिखा है, it was established on 2nd February 1971 and it was first celebrated in 1997. Okay guys, should I go ahead? भाइयों बहनों, लिख लिया आप सबका? लिख लिया आप सबने? ओके, लेट्स गो। ओके, चलो। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे आया भाई? सबसे पहले ये बताओ। आसाम। ओके, यस, आसाम। अभी मुझे ये बताओ दैट अगर एक जंगल है तो उसका काम क्या होता है? कार्बन को एब्जॉर्ब करना, बिकॉज ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रीनरी, टू एब्जॉर्ब कार्बन एंड टू रिलीज ऑक्सीजन।
बट आफ्टर अमेजोन, अभी ये देखा गया, अमेजोन में भी रिसेंटली देखा गया था दैट carbon dioxide absorbing capacity of the forest is going down and Amazon is now giving out carbon dioxide. In the same way, इंडिया में देखा गया कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या हो रहा है, that now they are rather than absorbing carbon dioxide, they are releasing carbon dioxide. पता चला मुद्दा क्या है? ओके, वेरी गुड. अभी वो क्यों है, दैट इज ऑल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. ओके, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन रखना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो दैट काजीरंगा नेशनल पार्क पे कौन सी रिवर पास होती है? एनी आइडिया गाइस? कौन सी है? आपने न्यूज में पढ़ा होगा, इट इज ब्रह्मपुत्र रिवर. व्हाई? बिकॉज ब्रह्मपुत्र हर साल फ्लड करती है और काजीरंगा में काफी सारे जो इंडियन राइनोसिरोस है वो मर जाते हैं. ओके, सो ये हमें पता होना चाहिए. ओके, ये पढ़ लो, मैं चेंज करता हूं. ठीक है, ये लिख लिया, देख लिया, पढ़ लिया, ये पढ़ लो. इंफॉर्मेशन काम की आगे. आपके सीनियर्स को नहीं, आपको ही पढ़ाया होगा. Guys, have we talked about Raimona National Park and Dihing Patkai National Park? है ना? Yes. नहीं, बहुत सारे लोगों ने yes कहा है. ठीक है, they were the two national parks which were recently included in Assam. मैं पढ़ाता हूँ अभी, लेकिन मुझे ये याद था कि मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. चलो आगे चलते. ये देख लिया, पढ़ लिया गाइस. Should I go ahead? ओके, काजीरंगा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, देखो, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम. इट इज लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन. ये भी हमने देख लिया. इट वाज अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो. ये एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है. और सबसे यूनिक चीज ये है काजीरंगा के बारे में that it is also a World Heritage Site. It is home to world's most one-horned rhinoceros, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडियन राइनोसिरोस. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडियन राइनोसिरोस कहां पे मिलते हैं? द आंसर इज आसाम. बट हाईएस्ट डेंसिटी पूछे आपको, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वन हॉर्न राइनोसिरोस. Density मतलब when you take area into consideration, the answer will be Pogitara Wildlife Sanctuary, which is again located in Assam only. ठीक है, ओके, हो गया. बस इतना लिख लो, हमारा काम हो गया गाइस. कम ऑन. काजीरंगा focused on 4 big species: Asiatic water buffalo, Royal Bengal tiger. लिख लो. एम आई क्लियर गाइस? पता चल रहा है आपको? लिख लो. Yes, Shilraj. Yes, Hetvi. The area of park is not important. वो सब इतना फैक्चुअल याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना एरिया है. वो सब काम का नहीं है. काजीरंगा ऑनेस्टली बताऊं, मैं नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्त जाके आए थे. इट इज एन अमेजिंग प्लेस. अमेजिंग प्लेस. ठीक है, बहुत जोरदार जगह है. हाईएस्ट डेंसिटी मतलब अनुष्का, अगर आप नंबर वाइज देखो, नंबर वाइज, इफ यू जस्ट काउंट नंबर्स, देन द काजीरंगा हैज हायर नंबर ऑफ राइनोसिरोस. बट काजीरंगा इज अ वेरी ह्यूज नेशनल पार्क. उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो राइनोसिरोस डेंसिटी इज लेस. Pogitara is a very small wildlife sanctuary and there are higher number of
rhinoceros there. So by considering the area and the number of rhinoceros, the density is much higher in कहाँ पे पोबितारा. और इससे ही मुझे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया. हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में देखे गए थे? मैं पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ाया. मैंने नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, नेशनल पार्क, और मैं टाइगर की बात कर रहा हूं गाइस. जोश में आके होश मत खो दो मेहरबानी करके. जिम कॉर्बेट, वेरी गुड वेरी गुड. जिम कॉर्बेट. और टाइगर की डेंसिटी कौन से उसमें ज्यादा है? डेंसिटी, टाइगर की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा इज इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये भी मैंने बताया था. सो प्लीज रिवाइज योर नोट्स. Highest number of tigers is in Jim Corbett National Park and the highest number density is also in Jim Corbett. Okay guys, चले आगे. Okay guys, let's go then. Everybody, चलो भाई. ये वन ओशन समिट वाला कौन था जिसको वन ओशन समिट पढ़ना था? एकदम दबा के पढ़ना था. और मैंने बोला था कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा. ओके देखो यार, एक बात याद रखना फॉर न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली. जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर कोई बहुत बड़ी समिट में पार्टिसिपेट करते हैं या एड्रेस करते हैं, whenever the Prime Minister of India is addressing any summit, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. It will be an important topic for an exam. One Ocean Summit क्या है? Basically, as the name itself suggests, it will be talking about oceans, that how we can keep our oceans free, open, inclusive. How we can do sustainable fishing, how we can save our oceans from pollution, garbage, and especially plastic. पता चल रहा है आपको? ओके. किसने ऑर्गेनाइज किया है वन ओशन समिट? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन ब्रेस्ट along with United Nations and World Bank. What is the importance of ocean? They occupy 70% surface of our planet. Oceans are important for the regulation of environment, climate, resources, and it enables trade. Trading कहाँ पे होता है guys? Trading का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए. That world, we with the help of oceans, we trade throughout the world. आपको पता होना चाहिए that India totally more than 70% does it exports with the help of oceans. पता है ये आपको? 70% से ज्यादा इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है, all of those take place with the help of oceans. Oceans are the link of culture also. आपको पता होना चाहिए. अरेबियन सी नाम ही रखा है अरेबियन सी. पता है why? Because people used to come from Arabia in towards India for trading purposes. Okay. One Ocean Summit ने क्या किया? To raise the collective level of ambition of the international community on marine issues. Am I clear guys? ये पता चल गया? चेंज करूं मैं? ये काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही याद रखने को बोलूंगा. इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. आप एग्जैक्ट देख लेना, 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है. और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? Which state has the longest coastline? गुजरात. आज गुजरात का हैप्पी बर्थडे है, पता है ना आपको? Many many happy returns of the day. 1 May 1960 को
काटा काटी हो गई थी, ठीक है, महाराष्ट्र के साथ. ओके गाइस, लेट्स गो अहेड. चले आगे. ये पढ़ना है, मेहरबानी करके घबरा मत जाना आप लोग. आपको पढ़ना है तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए. इंडिया ने क्या किया है? इंडिया सपोर्ट्स द फ्रेंच इनिशिएटिव ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. मेरी बात सुन लो, ये लिखना है आपको हाई एम्बिशन वाला पार्ट. व्हाई? बिकॉज इंडिया ने कहा, क्या कहा है? दैट वी अग्री विथ फ्रांस दैट वी शुड प्रोटेक्ट द ओशन बायोडाइवर्सिटी इवन विच इज बियॉन्ड अवर नेशनल जुरिस्डिक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारी कोस्ट लाइन वाले एरियाज को ही प्रोटेक्ट करें. वी शुड प्रोटेक्ट ओशंस ऑल टुगेदर. पता चला इसका करने का मतलब क्या है? एम्बिशन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. जो हमारा जुरिस्डिक्शन है उसके बाद भी वी विल प्रोटेक्ट द ओशंस. ठीक है. They also talked about ambitious outcome of the ongoing negotiation on a treaty of high seas. देखो guys, right now there is negotiations are going on to achieve a new treaty which is called Treaty of High Seas. Treaty of High Seas is same जो मैंने ऊपर दिखाया, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. किसके अंडर करेंगे हम ये? यूनाइटेड नेशंस के अंडर. ट्रीटी का नाम क्या है? बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत न्यूज में है एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली. ठीक है. बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. ये किसने प्रपोज किया है? फ्रांस ने. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ हाई सीज. ये किसके अंडर होगा? यूनाइटेड नेशन के अंडर होगा. एंड राइट नाउ कहां पे बैठ के हम इसको बना रहे हैं? द आंसर इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, द मेन इंटरनेशनल अग्रीमेंट गवर्निंग ह्यूमन एक्टिविटीज एट सी. एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस? क्वेश्चन हो तो पूछ लो बिंदास. ठीक है, नहीं है तो लिख लो. राइट नाउ अगर आपको ओशन में कुछ भी करना है, द ओशन इज गवर्न्ड बाय अ लॉ एंड दैट लॉ इज गवर्न्ड बाय यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज. अगर आपको चाइना जाने नहीं देता है, फॉर एन एग्जांपल थ्रू साउथ सी चाइना, साउथ चाइना सी, देन यू कैन लॉन्च अ कंप्लेंट दैट चाइना इज वायोलेटिंग UNCLOS, United Nations Convention on the Laws of Seas. पता चला? Because it governs the ocean. BBNJ क्रिएट की करता क्या है? इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और यू शुड यूज द मरीन एंड द ओशन रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे without harming the biological diversity of areas beyond your national jurisdiction. मतलब अगर इंडिया को कचरा डालना है तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन से दूर जाके they can dump garbage into the oceans. पता चला? That is the reason this treaty is called as beyond national jurisdiction also. It is your duty to conserve oceans and conserve its resources. Okay? चले आगे. ओके एवरीबॉडी, फिर मत बोलना कि सर रह गया. ठीक है, चलो. इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक. ठीक है, इंडिया रिसेंटली
India recently undertook a nationwide awareness campaign to clean plastic and waste from coastal areas. समझ रहे हो? Everything is focused on coastal areas and marine oceans. Okay. India will happy to join France to launch a global initiative on single-use plastic. वंश मैं जानता हूं ये न्यूज़पेपर में दिस टॉपिक इज ऑन रिकरेंट बेसिस. एक्चुअली मुझे ये समिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था पहले, टू बी ऑनेस्ट. बट मैं देखता हूँ कि नहीं यार इसके बारे में तो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, तब जाके मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, क्योंकि ऐसे समिट तो बहुत सारे होते रहते हैं, बट जो चीज बार बार आपको न्यूज में देखने को मिले या न्यूज़पेपर में आए, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके, कंटिन्यूइंग अहेड. Under the Ministry of Environment, they have issued plastic waste management rules, which prohibit single-use plastic by 222. Indian Navy has also directed that they should provide 100 ships every year for the cleaning of plastic from the oceans. पता चल रहा है गाइस आपको? प्लास्टिक यूज नहीं करने का मैं भी बताता हूं आपको हर एक लेक्चर में. ठीक है. यूज सस्टेनेबल रिसोर्सेज, जूट यूज करने का. हो गया. एवरीबॉडी चले आगे. यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस. ओशन का इंपॉर्टेंस देख रहे हो आप? दैट इन 2017 even the United Nation they have organized the ocean conference. सेम चीजों के लिए, कुछ नया नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ याद होना चाहिए दैट ओशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2017 में. The next conference is to be scheduled in 2022. This is important also. Decade for the ocean science and sustainable energy. कब ऑर्गेनाइज किया गया था? अभी चल रहा है. Since 2021 to 2030. Decade on ocean science for sustainable development. हमने इसे डेडिकेट किया है. हमने मतलब यूनाइटेड नेशंस में. वर्ल्ड ओशन डे भी सेलिब्रेट करता है यूनाइटेड नेशंस. कब करता है? जून 8 को. इंडिया एंड नॉर्वे दे हैव आल्सो साइन अ डायलॉग. इसके लिए अगेन फॉर मरीन कोऑपरेशन, ओशन कोऑपरेशन एंड इंडियाज इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव. This is basically again to operate the Indo-Pacific region in a sustainable way and to deal with any challenges that emerge in the region. कहीं किसी का शिप टूट गया, कहीं पे किसी को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट चाहिए, इंडिया ऑलवेज प्रोवाइड हेल्प इन द Indo-Pacific region. ओके गाइस, टोटल फैक्चुअल चीजें लेकिन याद रखनी पड़ेगी. एम आई क्लियर? कौन बोर हो गया? हाथ ऊंचा करो. अच्छा, 3. वेरी गुड. आई अंडरस्टैंड गाइस, आई अंडरस्टैंड. तो करना पड़ेगा लेकिन. ठीक है. आयोरा में हमने कर लिया, इंडियन ओशन फॉर रीजनल एसोसिएशन. हाँ क्या जी, क्या क्वेश्चन है? जल्दी पूछो. मैं पढ़ाने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो पूछो. जब मैं पढ़ाता हूँ तब मुझे बोल देने दो. बाद में यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. देखो यार, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. मई तक का कर लो. मई तक का करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए.
और मैंने हमेशा से बोला है दैट इंपॉर्टेंस एंड मोर फोकस शुड बी गिवन फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने पक्के होने चाहिए। बाद में यू कैन गो पीछे धीरे 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 कर, ठीक है। और 1 साल का करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होना चाहिए, 1 साल का, 1 ईयर। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? सबने सब लिख लिया? ओके, चलो आगे। किसको याद है लास्ट टाइम मैंने आपको सोलार स्टॉर्म के बारे में पढ़ाया था? याद है? सोलार स्टॉर्म, सन साइकिल। सन साइकिल कितने साल की होती है, जरा बताओ तो। 11 साल की, एक्सैक्टली, वेरी गुड। ये सेम टॉपिक है, ये सेम टॉपिक है, लेकिन काफी सारे पेपर्स में मैंने देखा है कि थोड़ा और डिटेल में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा व्हाई टू टेक चांस लाइक अ स्टडी इन डिटेल। पता चला मुझे ये काफी ज्यादा साइंस बेस्ड लग रहा था पहले, इसलिए मैंने कभी आपको इतने डिटेल में नहीं करवाया ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन फिर मैंने काफी सारी जगह देखा कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे इसके ऊपर से, सो आपको भी थोड़ा मेरे साथ सहना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? सो ध्यान से मेरी बातें सुनना, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, फिर ये देख के इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। देखो गाइस, सबसे पहले सन हैज 3 लेयर ऑफ एटमोस्फियर। कितने हैं लेयर सर के? सन के, सर के नहीं, सन के 3। प्रियंका चोपड़ा, PCC, प्रियंका चोपड़ा PC, और एक और सी लगा दो। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर, फोटो खींचते हैं ना, फोटो और स्फीयर। सेकंड लेयर इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फीयर, एंड द थर्ड इज हम सबका फेवरेट, कोरोना। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फियर इज कॉल्ड कोरोना। इतना पता चल गया? ओके, नाउ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक स्टोरी की तरह समझाऊंगा, और फिर आप ये पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। सो गाइस, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ there are some regions which are called as dark spot. क्यों डार्क स्पॉट होते हैं? बिकॉज दे आर इन वेरी डार्क इन कलर, इसे कहते हैं सन स्पॉट्स। यहां पे लिख रहा है सन स्पॉट्स पहली लाइन में, एंड दे आर वेरी डार्क इन कलर। पते की बात यह है that this regions have lower temperature than the surrounding areas. जहां पे भी ये सनस्पॉट होते हैं उस रीजन का टेम्परेचर कम होता है रेदर देन द सराउंडिंग एरिया। नाउ जब भी ये डार्क स्पॉट्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, सन के सरफेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पिंपल्स तो आप सबको होते होंगे। तो जब ये बहुत सारे स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सन एमिट्स प्लाज्मा इनटू द स्पेस। सन क्या एमिट करता है? रेडियो एक्टिव प्लाज्मा। नाउ दिस प्लाज्मा travels into the space and it comes within the close interaction of earth magnetic field. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है which is called as magnetosphere, इसके साथ ये प्लाज्मा इंटरैक्ट करता है, and we should thankful to this magnetosphere that plasma is repelled मतलब उसे दूर फेंक देता है। क्या? ये मैग्नेटोस्फीयर। पता चल रहा है यहां तक क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रही है? ओके, दिस इजेक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये जो सन के सरफेस से प्लाज्मा इजेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन, CME। इजेक्ट करना मतलब किसी चीज को बाहर फेंकना। सन क्या थ्रो करता है बाहर? प्लाज्मा। नहीं, अंश इतना सारा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, मैं काफी धीरे से कर रहा हूं ताकि आप सबको पता चले, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा।
कोई पार्ट पता ना चल रहा हो तो आप पूछ सकते हो. एनीबडी, कोई और है यहाँ पे ऐसा? सन emits plasma. That plasma is repelled by Earth's magnetic field. पता चल रहा है आपको? When the sun throws this plasma into the space, it is called as coronal mass ejection. ये कहां से होता है coronal mass ejection? From the outer surface of Earth atmosphere. That is corona. Am I clear, guys? इतना पता चल रहा है? कोई पॉइंट पता ना चल रहा हो तो पूछ लो. ऐसा मत बताना कि सर कुछ नहीं पता चल. ठीक है? और अभी आराम से ये पढ़ लो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. इसके ऊपर पहले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सोलर साइकिल के बारे में. ठीक है? लेकिन ये इलॉन मस्क का आता है ना कुछ भी तो लोग पगला जाते हैं, पता नहीं क्यों. इसलिए बहुत सारा लिख रहे हैं. अगर आप सिर्फ स्टारलिंक डाल के अभी गूगल करोगे, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर. तमन्ना, इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर. फोटोस्फीयर. और अगर किसी को अभी भी पता नहीं चल रहा है, दिस इज आई हैव कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. वो इलॉन मस्क के 40 सैटेलाइट बिगड़ गए इसके कारण. ठीक है? स्टार लिंक के जो 40 सैटेलाइट्स थे, बिकॉज ऑफ दिस कोरोनल मास इजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन, कोरोना, उसके 40 सैटेलाइट बिगड़ गए. ठीक है? मिडल लेयर इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फियर. ओके गाइस, पता चल रहा है? यार ये इंटरेस्टिंग लगा या ये बोरिंग था? बोरिंग वाले हाथ ऊंचे करो. ये बोरिंग आपको पता है क्यों नहीं लगना चाहिए? पता है? मैं आपको रीजन बताता हूँ ये आपको बोरिंग क्यों लगना नहीं चाहिए. हमारी लाइफ इसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है. अगर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर वेव होता, अगर ये बहुत ही ज्यादा सोलर विंग स्ट्रॉन्ग होती, पता है क्या होता? आपके घर पे जो टीवी आता है ना सेट टॉप बॉक्स वाला, वो बंद हो जाता. जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस है जिसके कारण हमारे घर पे बिजली आती है, वो बंद हो जाता. जो द टोटल कम्युनिकेशन नेटवर्क जिससे प्लेन उड़ते हैं, रेलवे चलती है, वो बिगड़ जाता. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता नहीं है. इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट नजर डाल के बैठे होते हैं कि कुछ सीरियस हो तो वी कैन टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स. सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तो माइल्ड है इसलिए आपको पता नहीं चला कि यार ये क्या हो गया, वरना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. क्योंकि इसके इफेक्ट्स में अभी आपको बताता हूं क्या होते हैं. इट कैन इम्पैक्ट स्पेस वेदर. आपको अगर ज्यादा होता है तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उनकी लाइफ को खतरा हो सकता था. हमारे सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता था. बिकॉज दिस इज टोटल रेडिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट. हॉट स्टीम, hot charged particles which are thrown by the sun. It can create disturbances in the magnetosphere. अगर मैग्नेटोस्फीयर अर्थ का ना होता हमें बचाने के लिए, तो हम अर्थ पे कभी रह भी नहीं सकते. We would have died of cancer and hot weather. अभी आपको पता चला, आपका जीपीएस बिगड़ सकता है, आपका रेडियो बिगड़ सकता है, आपके सैटेलाइट्स बिगड़ सकते हैं, आपकी एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स बिगड़ सकती है, पावर ग्रिड बिगड़ सकते हैं. Are you getting the information now? Why this is such an important phenomenon? It is to the mercy of Earth's magnetosphere that we are able to live peacefully here. Yes, it can lead to national crisis, definitely. Because we have to make sure that our devices are very much capable to deal with these disturbances. अभी लग रहा है बोरिंग किसी को? या मजा आया थोड़ा? जब तक आप चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते तब तक चीज बोरिंग लगती है. ठीक है? लिख लो, कमॉन फटाफट.
I have some, I'm very constrained in this online format. अगर क्लास में होता ना तो मैं आपको इतने आराम से समझाता ब्लैक बोर्ड पे कि आपको मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग में रट्टा घुस जाता। एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग्स वेरी इजीली, वेरी इजीली। लेकिन यहाँ पे वो मैं कर नहीं सकता। हो गया गाइस, भाइयों बहनों। चलो गाइस, लेट्स गो एंड। हाँ, ये बढ़िया टॉपिक। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर पढ़ के लिख देना। वेरी सिंपल टॉपिक, सिंपल इश्यू, कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। देखो, with the 193 countries, United Nation is world's biggest gathering of countries. पता है ना ये आपको? सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप कोई है वर्ल्ड में तो वो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा ग्रुप है आफ्टर यूनाइटेड नेशन ऑफ कंट्रीज इज OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बिकॉज देर आर सो मैनी इस्लामिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो उनका पूरा अपना खुद का एक ग्रुप है, ठीक है। Now, recently, Pakistan, with the help of OIC, sponsored, they introduced a resolution in United Nations and it was accepted. And now, 15th March will be celebrated as International Day to Combat Islamophobia. ठीक है? World में, throughout the world, with the rising incidence of Islamophobia, this resolution was passed. ठीक है? What is the main theme behind this resolution? This is to, urge all the people in the world, governments, private institutions, civil society, to support and various high visibility events to curb इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया ना करने को ये रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है, ठीक है। The resolution emphasizes the right to freedom of religion and belief. Like 1981 में, we have already a world-renowned treaty which says that everyone is allowed to follow religion and their belief and to eliminate all form of intolerance and discrimination based on religion belief. ठीक है? रिलीजियन बेस्ड बिलीफ के ऊपर हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये 1981 में ऑलरेडी इट इज एक्सेप्टेबल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। इंडिया में कौन से आर्टिकल मेंशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ? विच आर्टिकल? अरे भगवान, क्या क्या डाल दो। अरे भाई, आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजियन। अरे यार, मेरे को ये भी पढ़ाना पड़ेगा मतलब आपको नेक्स्ट टाइम। यार, आप तो बहुत सिली क्वेश्चंस में गलतियां करते हो। मेरे आर्टिकल 25 है सर, ठीक है। राइट टू रिलीजियन, नाम ही ऐसा है, राइट टू रिलीजियन। 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल आते हैं उसमें, ठीक है। ओके, लिख लो फटाफट ये। 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। So from now onwards, 15th March will be celebrated as International Day to combat Islamophobia. ठीक है? अभी ये जो पास हुआ तो इंडिया को थोड़ा बुरा लगता है। So we will also know that what India said at this particular instance. ठीक है? आपको पता होगा that India right now is a member of United Nations Security Council. तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है TS तिरुमूर्ति, उन्होंने भी कुछ बोला इसके बारे में, तो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला। ठीक है भाई, ये लिख लिया, चले आगे। ठीक है,
चलो इसके पहले ये पढ़ना जरूरी है दैट 2019 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दे पास द रिजोल्यूशन टू सेलिब्रेट अगस्त 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। In 2019 only, United Nations General Assembly they passed a resolution celebrating International Day commemorating the victims of act based on religion and belief. मतलब ऑलरेडी पहले से एक ऑलरेडी डे 22 अगस्त इज डेडिकेटेड विद द सेम पर्पस। एम आई राइट और रॉन्ग? ये भी सेम बात करता है दैट बाय रिलीजन और बिलीफ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये ऑलरेडी 2019 में अगस्त 22 को ये डे था। This is the same argument that was given by India that भाई discrimination तो हर एक रिलीजन वाले के साथ होता है। The people who are Jewish, they are discriminated. Christians are discriminated. Muslims are discriminated. So is Hindu and Sikh are discriminated. Buddhists are discriminated. ठीक है, मतलब सब जगह ये चलता है। तो ऐसा स्पेसिफिक इस्लामोफोबिया के लिए डेडिकेट करने की जरूरत नहीं। That was the argument given by India. वैसे मुझे काफी कम चीजें रीजनेबल लगती है, लेकिन मुझे ये चीज रीजनेबल नहीं that people are discriminated on the basis of every religion. तो ऑलरेडी उसके लिए हमने दिन रखा है, तो ये पूरा नया दिन बनाने का क्या जरूरत था? समझ रहे हो मेरी बात? और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे बिलीफ नहीं है, ऐसा इंडिया ने बोला है वहां पे टीएस तिरुमूर्ति साहब ने। ठीक है, देख लो that India expressed concerns over phobia against one religion. That not why should only one religion? That there are chances of Sikh phobia, Buddhist phobia, Hindu phobia. That why did Pakistan not include pluralism? That we condemn discrimination based on any religion. ठीक है? So that was the argument given by India. पता चल गया? क्या बुरा लग गया? आपको पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट वाज द इंडिया स्टैंड और 4 स्टेटमेंट दे देंगे, तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया है आप। ठीक है, और ये पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। देखो यार, मुझे इतना पता चलता है फ्रॉम माय नॉलेज that women are discriminated throughout the world. Throughout the world. The word I am using is throughout. ठीक है, कोई भी ट्राइब ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, कुछ भी ले लो, the receiving end is always women. There can be no second doubt to it. वो बड़ी बड़ी बातें बनाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, उतना मुझे पता चलता है। हाँ यार, मतलब ये सब चलता रहता है गाइस। यू नो, आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन योर एजुकेशन। यू नो, यू कैन ओनली मेक थिंग्स बेटर बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ इन अ गुड वे एंड बाय बीइंग नाइस टू एवरीबॉडी। ठीक है, डोंट फॉल फॉर हियरसेस। चलो ये जल्दी जल्दी लिख लो। वंश, क्या क्वेश्चन मार्क कर रहे हो? किसके बारे में कर रहे हो? जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल अटेंशन, मतलब उसका क्या मतलब? आप ऐसा सिर्फ एक चीज डाल के छोड़ दोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा? क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका उसके बारे में मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड एवरीबॉडी? ठीक है, चलो 15 मार्च को याद रखना और 22 अगस्त को याद रखना, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। हाँ, ये देखो यार, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो ध्यान से सुनना है, ये बहुत जोरदार है। एक आंटी होंगे, नहीं आंटी एडवोकेट है, तो आंटी को मस्ती चढ़ रही थी, तो आंटी ने बोला कि आज कोर्ट में जाके एक अर्जी डाल के आए।
और अर्जी में ऐसा लिखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली एनफोर्स कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी है, पता है ना आपको, पार्ट 4A में। पार्ट 4A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का मजा ये है दैट फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, जस्ट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लीगली एनफोर्सेबल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पता चला आपको? इतना पता चला? हाँ। तो ये आंटी थोड़े से भावुक हो गए, तो आंटी ने कोर्ट में जाके बोल दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी फंडामेंटल राइट्स की तरह लीगली एनफोर्स होने चाहिए। तो आंटी को पूछा गया कि आंटी आप क्यों ऐसा सोचते हो? तो आंटी ने बोला दैट लोग राइट्स करते हैं लेकिन ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं, एंड ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक कंडक्ट एंड डेमोक्रेटिक बिहेवियर। ऐसा सब कुछ आंटी कह रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दैट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से आए, क्यों आए, टोटल कितने हैं, पहले कितने थे, कब अमेंडमेंट हुआ फंडामेंटल ड्यूटी में, बिकॉज इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये बताओ कौन सी कमिटी बनाई गई थी फॉर द फंडामेंटल ड्यूटी, द मोस्ट फेमस कमिटी मेड बाय इंदिरा गांधी, जो ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लेके आई थी? स्वर्ण सिंह कमिटी। एंड विथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 fundamental duties were inserted in part 4A of the constitution. पता चला? Very important questions. 42nd Constitutional Amendment Act 1976, right? टोटल कितनी डाली गई? स्वर्ण सिंह ने बोला 8 कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज डालो। इंदिरा गांधी ने 10 डाल दी, ठीक है, टोटल 10 डाल दिए। और फिर वाजपेयी साहब एक और ऐड कर दिया 11 नंबर का, ठीक है, देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी। 51A में टोटल 11 अब है, जब 42nd डाला गया था तब टोटल 10 थी। 11 किसने ऐड की? 11th was added by the 86th amendment in 2002 by Atal Bihari Vajpayee. These duties are not enforceable by law, but court can take help from fundamental duties while deciding on any matter. पता चला? कोर्ट थोड़ा बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज कर सकता है while deciding on any matter, ठीक है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी हो। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ पार्ट ऑफ जनरली कम्युनिस्ट स्टेट। जो स्टेट कम्युनिस्ट होते हैं उनके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जांपल रशिया। 2 एक्सेप्शन है इस चीज को कि डेमोक्रेटिक कंट्री में भी कुछ ड्यूटी है, एक जापान के पास है और एक इंडिया के पास। बाकी वर्ल्ड में ऐसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई हो। एम आई क्लियर? और हमेशा एक बात याद रखना, राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूटीज, ठीक है। राइट्स मिलने चाहिए। स्टेट कब बनता है? विद द हेल्प ऑफ सिटीजन्स, एंड स्टेट क्यों है? टू प्रोटेक्ट अवर राइट्स। ये स्टेट बना के स्टेट वाले बोले कि ड्यूटी भी चाहिए हमको, ये सब फालतू का बात है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे आगे जाके फिलोसॉफी, तो अब आप मेरे को याद करना, ठीक है, कि सर ने ऐसा कुछ बोला था। तो जितने भी लिबरल स्कॉलर्स हैं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये सब ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। आप सब पढ़ोगे आगे जाके, मजा आएगा आपको। लिख लो गाइस फटाफट, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 वो कहा ना, वो दुर्गा आंटी को थोड़ा मजा आ गया होगा, बोर हो रहे होंगे, तो जाके कोक में डाल दिया, ठीक है। आज कुछ तूफानी करते हैं। एक तो कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के। अभी उसमें भी आप फंडामेंटल ड्यूटी के वायलेशन के केस डालोगे
तो क्या होगा। लेकिन ये सब चलता रहता है, ये थोड़ा लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए ना, ये सब उसके लिए होता है, ठीक है। आंटी खुद ड्यूटी फॉलो नहीं करते होंगे, नो पार्किंग में पार्किंग करते, चलता है, टेंशन नहीं लेते का। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो, अगर आपको उस चीज के ऊपर प्राउड लेना है दैट वी आर अ लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री, जो इंडिया लेता है, देन उसके लिए राइट्स होने चाहिए सिटीजन के पास, ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। वरना बोल दो कि हम कम्युनिस्ट स्टेट बनना चाहते हैं, अगर आपको बनने की इच्छा है तो, ठीक है। ये पढ़ोगे आप, सब फिलोसॉफी आएगा, तब आप पढ़ोगे ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ पीपल राइट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो भाइयों, हो गया, चले आगे। दिस फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, परमानेंट इंडस कमीशन मीटिंग। देखो भाई, आफ्टर पार्टीशन देयर वाज कंसर्न of Pakistan that India will not allow us our legitimate share of waters from Indus and its tributaries. तो थोड़ा बहुत हमारा झगड़ा चला, बाद में with the help of World Bank we came up with Indus Water Treaty. इस ट्रीटी में हमने क्या बोला, लाइक IJC, जेसीबी नहीं, जेसीबी काफी न्यूज में है, उसमें सब जेसी ले लो और आई ले लो। IJC, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। हम किसका पानी यूज करेंगे? रवि, बियास एंड सुतलेज, ठीक है। बट वी आर अलाउड टू मेक डैम्स, ऐसे डैम्स जिसमें आप पानी स्टोर नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? रन ऑफ द रिवर, रिवर का पानी बहता रहना चाहिए, आप ऐसा पानी को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। ऐसी सारी चीजें आप बना सकते हो। एम आई क्लियर? कब साइन हुई थी? 1960 में। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और हर एक साल परमानेंट इंडस कमीशन में पाकिस्तान और इंडिया के एक्सपर्ट्स मिलते हैं टू रिव्यू द ट्रीटी, कि भाई ठीक से काम कर रहा है ना, कोई ज्यादा पानी नहीं ले रहा ना, उसके लिए। समझ रहे हो मेरी बात? 2016 में जब उरी अटैक हुए, उस साल इंडिया ने बाइकआउट कर दिया कि इस साल चाय पीने नहीं आएंगे हम आपके वहां पे, ये आप ऐसा सब करते रहते हो तो हमको मजा नहीं है। लेकिन फिर वापस से हमने मीटिंग शुरू कर दी। एम आई क्लियर गाइस? लिख लो, लिख लो, लो। हर साल पढ़ाता हूं ये, हर साल। इंडस वाटर ट्रीटी, फिर वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट विथ, किसके साथ था? ईरान के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। लिख लिया गाइस? शुड आई गो अहेड? What type of answers can be asked from this topic? ठीक है, चल मैं पूछ लेता हूँ अगर तुझे कि इंडिया हैज राइट्स टू यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम विच रिवर्स इन इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्वेश्चन हो गया। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन? 1960। दूसरा क्वेश्चन हो गया। पाकिस्तान के साइड कौन था जिसने साइन किया? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इंडिया के साइड किसने ये साइन किया? ये चौथा क्वेश्चन हो गया। बोलो और कितने क्वेश्चन चाहिए? किशन गंगा एंड नीलम डैम इज इन डिस्प्यूट, इट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? अगर आपने ये मैप देख सकते हो तो आपको झेलम नदी के ऊपर दिख रहा है किशन गंगा एंड नीलम? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी रिवर बता दो इंडिया की, इंडस की ट्रिब्यूटरी, जो पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती।
चलो बताओ कौन सी रिवर है वो? सतलज तो होती है। बियास। यस गाइस, यार देखा। नहीं, गंगा तो इंडस की वो ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। बीएस बीएस दिख रही है, बीएस मर्ज हो जाती है पंजाब में, सतलज के अंदर। ठीक है, अभी तो आगे और पढ़ना है इसके बारे में। देखो, इंटर डोमिनियन अकॉर्ड वो साइन इन 1948 आफ्टर पार्टीशन। एक साल बाद हमने क्या एक साइन ट्रीटी की थी। उस साइन में ऐसा बोला गया था कि इंडिया पानी देता रहेगा जब तक पाकिस्तान हमें पैसा देता रहेगा। पता चला, पाकिस्तान क्या देगा? पैसा। और हम क्या देंगे? पानी। समझ रहे हो? फिर 1951 में दिस ट्रीटी वाज ड्रॉप्ड और दोनों का झगड़ा हो गया तो वर्ल्ड बैंक चले गए। ठीक है। For 1960 में this treaty was signed between the Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistan Minister Ayub Khan। देखा? क्वेश्चंस और चाहिए? क्वेश्चंस पता चल रहा है गाइस? लिख लो। And this should be, you should be passionate about learning these things। ठीक है, ये मतलब आपको इतना अच्छा जानने को मिल रहा है। आप देख लो कि इंडिया ने कितनी बार वॉर की है, इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने, लेकिन आज तक हमने इंडस का पानी नहीं रोका। ठीक है, ऐसा कुछ रोक नहीं सकते, बहुत बड़ी नदी है, लेकिन ये कहने की बात है। ठीक है, ये आज से कितने, मैं बताऊं आपको, आज से लाइक 100-200 साल पहले तक तो इंडस की जो रिवर है, इंडस का जो माउथ होता है, जहाँ पे रिवर एंटीज एक्सेल, वो अपने कच्छ में था। ठीक है, फिर भूकंप आ गया तो वो ऐसा जंप मार के वो उस साइड चली गई, कराची सिंध के अंदर। ऐसी स्टोरी है, रियलिटी है ऐसी। ठीक है, पहले द माउथ ऑफ इंडस वाज इन कच्छ ओनली। ठीक है, चलो हो गया। और आज भी जो इंडस डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा कच्छ के अंदर है। कितना बड़ा डेल्टा बनाती है? आधा डेल्टा कच्छ में है और आधा सिंध में है। ठीक है, हो गया गाइस? शुड आई गो? चलो, अब बाइलेटरल कमीशन, जो कमीशन की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो हर एक साल में मिलती है। क्या? शैल मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बार कहां पे मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे। दूसरी बार कहां पे मिलेंगे? पाकिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, ये नीचे का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हैज राइट्स ओवर इंडस, झेलम एंड चेनब। Annexure C of the Indus Water Treaty allows India certain agriculture uses। क्या कहती है कि इंडिया इंडस, झेलम और चेनब के पानी का भी थोड़ा बहुत यूज कर सकती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस अंडर सेक्शन सी। और सेक्शन डी के अंदर जो मैंने बोला अभी जस्ट स्टार्टिंग में, द ग्रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पानी को स्टोर नहीं कर सकते। देखा? एम आई क्लियर और नॉट? दैट इंडिया कैन यूज द वाटर ऑफ इंडस, झेलम एंड चेनब। ऐसा नहीं है कि हम पानी को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते और पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते। एम आई क्लियर गाइस? पता चल रहा है बहनों? अरे वाह। Okay, so this will be all. I hope you guys had fun and gained some good knowledge। ये टॉपिक्स आज के काफी बड़े थे बट दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। रिवाइज वेल, स्टडी वेल, एंड आई विल सी यू ऑन, यस अर्ज, गुड बाय। आई विल सी यू नेक्स्ट संडे। हाँ, अगले संडे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। आपको भी ख्याति। हैव अ गुड वीकेंड गाइस, गुड वीकेंड, गुड वीक डेज। बाय बाय। ओके गाइस, टेक केयर।